Hello, hello, hello. Welcome. Hello, Namji. Hi. I was just um, called to just come online. I don't know why. Okay. So I'm here. Hi, Hanji. Yes, रात में. Hello. Hi, Alicia. हाँ, yes. Namaskaram. So I'm taking in a few questions. I felt like I don't know. There is this shifty energy. There is this energy of the day started out quite slow for some of us, and it started off on a very high note, a very high energetic note, very high positive note for others of us. So, but there is definitely something that is. Holding us back right now at this moment, and I just felt like coming online, so I'm inviting any questions that you might have with regards to yourself, with regards to your journey. This is not a reading as such. Hello Purva ji, after a long time. So this is not a reading as such, but I'm inviting questions. If you have certain questions about twin flame journey or with regards to your own spiritual obstacles that you might be facing right now at this point, right? So I'm inviting any questions. The floor is open to you. How are you all feeling today? As you can understand, throat is much better, but since the past 2 days there is a lot of pain. There's a lot of pain in the throat area, especially in the right side. So that is again the masculine collective wanting to express, wanting to share, wanting to describe and let their thoughts and feelings out about how they feel about you in this connection, but somehow it's like due to the situation they're holding it back. Wait or move, that's the question, Astha ji. So move, always move. I'm the last person who is going to ask you to wait. Okay, move, go with the flow, go with wherever life is taking you at this point, and no grudges. Hey, there are no hard feelings, and if someone is really truly meant for you, quite ironically we come to that conclusion only once you have moved on, once you've chosen to move on, right? Once you keep seeing the signs repeatedly, once you keep coming back to the person again and again and again, even though you have made an honest choice of moving forward with your life. So even through that honest choice that you've made for yourself, you feel like you again and again coming back to the person. That's how you know, but doesn't have to be so, okay? But that will happen only when you give yourself the permission to move on, right? So I am never the person and the last person who's going to ask you to wait around for your person, to wait around for your twin flame, because then you will wait forever, which I don't want. Waiting implies that there is a moment in future, right? Waiting implies that future exists. Well, in truth, in spiritual truth, in the highest spiritual truth, there is no future, there is no past, there is only the eternal infinite present moment. So the abundant now, right? So be here, be right now with me on this live, and you are going to realize that everything that is meant for you is already coming forward to you, right? So essentially there is no need for you to wait around for anyone. Body feels tired, yes, definitely. There are lots of aches and pains, especially in the joints, in the bones particularly. Some of us may have certain muscle loss or having certain muscle cramps. Some of the feminines are clearing and purging their sacral chakra. Other feminines are also clearing their throat chakra, right? It doesn't have to be so. Why does a DM come and then never show up for a long time? जब भी DM आ रहे हैं और रुक नहीं रहे हैं,
they are not staying back for a long time, or there is a gap of separation that is for our own healing. ठीक है, DM जब आते हैं तब आपने खुद ने एक्सपीरियंस किया कि कितना अपहीवल होता है, कितने ट्रिगर्स आते हैं, कितनी अनईजी जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, स्टकनेस है जो ऊपर आती है सरफेस पे, इट कम्स अप टू गेट क्लियर्ड, राइट. सो इट इज़ नेसेसरी. अगर आप समझिए, अगर रोज़ रोज़ आके आपको ट्रिगर देंगे तो आपकी क्या ही हालत मचेगी. राइट. तो दैट इज़ ऑल्सो लाइक डिवाइन ग्रेस कि वो आते हैं चले जाते हैं ताकि वो हमें वो स्पेस मिले, ताकि हमें वो खुद के साथ बैठने का पेशेंस मिले, वो टाइम मिले, ताकि हम अपना इनर वर्क कर सकें, अपना हीलिंग वर्क कैरी ऑन कर सकें. Viral fever infections are very common these days. Yes, Apurva ji, totally. I'm a big marees to that. Rudra Sadhana Tarot. Hello. Hi, Truly Shri. DM asked to give him space and it's hard to stay away. So I know it's hard to stay away, Scotian, but it is very very important to respect your ट्विन फ्लेम्स चॉइस राइट नाउ. अगर आपकी ट्विन फ्लेम चूज़ कर रहे हैं कि उनको अपने कामिक सिचुएशन में फोकस करना है, अपनी लाइफ में वापस जाना है, तो उनको जाने दें, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी चॉइसेस को वैल्यू करें, उनके डिसीजंस को अहमियत दें, राइट. व्हेन यू आर डूइंग दैट यू आर चूजिंग लव. बट अगर आप कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हमारा क्या होगा, हमारे कनेक्शन का क्या होगा, दिस इज़ एन इटर्नल बॉन्ड दैट आई फील विथ यू, वी आर ट्विन फ्लेम्स, यू डोंट अंडरस्टैंड द लव दैट आई हैव फॉर यू इज दिस दिस दैट दैट, तो आप क्या कर रहे हैं, आप ग्रैब और होल्ड ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं. आप क्लिंगिंग एनर्जी में, नीडी एनर्जी में है, राइट, चेजर एनर्जी में आ गए हैं, राइट. एंड दैट इम्प्लाइज दैट यू नो आपको खुद के प्रेम पे विश्वास नहीं है, राइट. तो अगर आप ट्रूली अनकंडीशनल लव होल्ड करते हैं अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के लिए, और ये ट्रू ट्विन फ्लेम जर्नी है, तो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट कहीं नहीं जा रहे. ट्रस्ट मी, दे आर नॉट गोइंग एनी वे, राइट. बिकॉज वो अगर जा भी रहे हैं अपने कार्मिक के पास में, तो उनसे लेसन्स लेने के लिए जा रहे हैं, राइट. ताकि उनका भी अपग्रेडेशन हो, ताकि आपके साथ में आके आपको ना ट्रिगर्स दें, राइट. दे वॉन्ट टू कम टू यू एज हील्ड, यू ऑल्सो वॉन्ट देम टू कम टू यू इन अ हील्ड स्टेट, राइट. और when they are ready to choose healing again and again, okay. So जब DM आपको स्पेस मांग रहे हैं और दूर जा रहे हैं, तो रिस्पेक्ट एंड वैल्यू हिज डिसीजन टू डू सो. और ऑन अ हायर लेवल वो आपको ये भी बता रहे हैं कि आपको अपना काम जारी करना है, राइट. आपको अपना इनर वर्क कंटिन्यू करना है, अपने पे फोकस करना है, इसीलिए वो दूर जा रहे हैं, राइट. दूर तो खाली फिजिकल में जाते हैं, हायर रेल में तो ऑलरेडी यू आर वन, एवरीथिंग इज वन इन अ हायर रेल. मुझे मेरे DM के लिए थॉट्स भी नहीं आती है एंड डिस्कनेक्टेड बहुत ज़्यादा फील होता है, राइट. सो डिस्कनेक्टेड कब फील होता है, जब आपके डिवाइन काउंटर पार्ट भी अपने फीलिंग्स को इग्नोर कर रहे हैं, या रन कर रहे हैं, या फिर बहुत ही लो एनर्जी में चले जाते हैं. तो एक डिवाइन प्रोटेक्शन सा समझ लीजिए कि डिवाइन यूनिवर्स जो है वो आपको आपके DM की लो एनर्जी से प्रोटेक्ट करते हैं, ताकि आप लो वाइब्रेशन में ना स्लिप करें, आप एक पॉइंट के बाद में लो में ना जाएं, राइट. क्योंकि आपने बड़ी मेहनत करके, बड़ी शिद्दत से अपने ऊपर काम किया है, आपने अच्छाई को चूज़ किया है, आपने डार्कनेस के ऊपर अपनी लाइट को चूज़ किया है, राइट. तो बड़ी मेहनत करी है आपने अपने ऊपर, इजंट इट. और यूनिवर्स ये जानती है, डिवाइन ये जानते हैं. तो जब आपके DM जब लोअर हरकतों में, लोअर आदतों में फंसे हुए हैं, लोअर रिलेशनशिप्स में फंसे हुए हैं, जो बहुत ही उनको परेशान कर रहे हैं, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, कुछ ये यू नो नेगेटिव मिस्चीवियस सी एनर्जी है, तो अगर DM इन सब एनर्जीज को एंटरटेन कर रहे हैं ना कहीं आप कनेक्टेड हैं अपने पर्सन से, तो वो एनर्जी आप पे भी हावी होने लगती है और आप बहुत ज़्यादा लो में स्लिप करने के संभावना में रहते हैं, राइट. तो डिवाइन प्रोटेक्शन के अंतर्गत आप दोनों के बीच का जो एनर्जेटिक बॉन्ड, एनर्जेटिक कनेक्शन है, टेम्परेरीली डिसरप्ट कर दिया जाता है, ताकि आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर सकें, सेव कर सकें, और आप लाइट होल्ड कर सकें. क्योंकि आप जो भी इनर वर्क कर रहे हैं वो केवल आप दोनों की यूनियन के लिए नहीं कर रहे हैं, आप कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को अपग्रेड करने के लिए भी, अपलिफ्ट करने के लिए भी काम कर रहे हैं,
राइट। तो आपका काम बहुत बड़ा है, मतलब हम सोच नहीं सकते हैं, ये तो मैं कह रही हूँ, कहने की बात है कि आप कलेक्टिव के लिए काम करें, पर अब किस तरीके से काम करें, आपका योगदान क्या है, वो आपको आगे जाके आपके गाइड्स जो हैं या आपके डिवाइन जो है वो रिवील करेंगे इन टाइम। तो टेम्परेरीली अगर आप उनको फील नहीं कर पाते हैं तो ये भी एक ब्लेसिंग है। Ishi, but even if someone moves on, keeps on coming, but they never realize that there is something unexplainable with this person, especially my DM. अगर वो नहीं रियलाइज करें तो उनका लॉस, isn't it? आपने अगर सच्चा प्रेम किया था तो आपके पास सिर्फ देने के लिए होगा, राइट? दैट इज व्हाट ट्रू लव इज अबाउट। तो यहाँ अपने में देखें कि कहाँ पे मेरी एक्सपेक्टेशंस बंधी हुई हैं, कि जी वो रियलाइज़ करेंगे कि हमारे बीच में स्पेशल कनेक्शन है, स्पेशल बॉन्ड है। उसके बाद में वो क्या करेंगे, वो कहेंगे हाँ मैंने ये किया, मैंने वो किया, सॉरी ईशी मैं समझा नहीं, मैंने इस रिलेशनशिप की अहमियत नहीं समझी, तुम्हारी अहमियत नहीं समझी। कहीं ना कहीं डीप डाउन आप ये सारी चीज़ें सुनना चाह रहे हैं ईशी, राइट? तो ये आपका इनर वर्क है, ये आपका स्कोप ऑफ वर्क है जिसे आपने कैरी ऑन करना है। और अगर वो आपके पर्सन तो सोल लेवल पे ऑलरेडी जानते हैं कि आप दोनों कनेक्टेड है, ये एक बहुत ही स्पेशल कनेक्शन है, बहुत ही स्पेशल बॉन्ड है। जो फॉन्डनेस, जो लव वो आपके साथ में महसूस करते हैं, जो सेफ्टी वो आपके साथ महसूस करते हैं, वो और कहीं भी नहीं कर सकते हैं। मैं किसी भी स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकती हूँ, कहीं भी फील नहीं करते हैं, राइट? इंक्लूडिंग वन ऑफ देयर क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, इंक्लूडिंग वन ऑफ देयर क्लोजेस्ट फैमिली मेम्बर्स। क्यों? क्योंकि आप इंट्रिंसिकली बोथ ऑफ यू शेयर द सेम एनर्जेटिक ब्लूप्रिंट, ठीक है? आप दोनों एक एनर्जेटिक स्प्लिट हैं ऑफ द सेम सोल, right? You both carry the same energetic frequency, and that is why they won't find anything like this anywhere else, isn't it? तो अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो क्या हो गया? आप तो समझ रहे हैं ना, आप समझ रहे हैं, आप जान रहे हैं इस लव की वैल्यू, आप जान रहे हैं कि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एक ब्यूटीफुल डिवाइन कनेक्शन है, ये एक आध्यात्मिक जर्नी है जो आपको परमात्मा से जोड़ रही है, राइट? तो आपके पास कोई ग्रजेस नहीं होंगे, ठीक है? क्योंकि आप जान रहे हैं क्या कनेक्शन है। तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है कि वो समझे ना समझे, जाने ना जाने, उसे वैल्यू करें ना करें, राइट? और जब ट्विन फ्लेम्स फिजिकल में मिलते हैं तो ट्रस्ट मी, यूनियन इज़ ऑलरेडी गारंटीड फॉर यू, इट इज़ इमिनेंट। यूनियन इन द फिजिकल इज़ गारंटीड फॉर यू, ठीक है? बट हम क्या सोचते हैं, नहीं यार ये तो मेरे साथ होने नहीं वाला, अभी तो क्या जैसा कुछ जा रहा है ऐसा तो लग ही नहीं रहा कि हम यूनियन में आएंगे दूर दूर तक, अभी तो हमें सालों लग जाएंगे, अभी तो ये होगा वो होगा, ऐसा कह के हम अपना यूनियन जो है खुद ही पोस्टपोन कर देते हैं, राइट? अपने मेंटल ब्लॉकेजेस की वजह से, अपने सबकॉन्शियस ब्लॉक्स की वजह से। इट्स लाइक आई डोंट केयर व्हाट ही इज डूइंग और व्हाट ही वांट्स टू डू, राइट? तो रुद्रांश साधना, आप रनर डायनेमिक में आ गए हैं डियर, आप फिर से दिस इज दैट अगेन, इट्स लाइक फ्लिप हो गई है पोलैरिटी और आप रनर एनर्जी में आ गए। प्रॉबेबली यू आर इन योर मैस्कुलिन एनर्जीज, दैट इज व्हाई यू फीलिंग लाइक आई डोंट केयर व्हाट एवर ही डज, वो करें जो मर्जी उनको करना है। डीप डाउन आपको हर्ट महसूस हो रही है, तो आप जब वो उस हर्ट को प्रोसेस करने बैठेंगे तो आपकी हीलिंग एक्सेलरेट होगी डियर, राइट? Anukrati saying, a day back I had severe headache and I cannot keep calm and then things get ruined, right? So please have your spiritual practices in place, Anukrati. It will help you balance your energies. मेरे तो आजकल बहुत ईयर रिंगिंग हो रही है, राइट? सो दीज आर सर्टन एक्टिवेशन फ्रीक्वेंसीज दैट आर रीचिंग यू रुद्रांश, ओके? बहुत से डाउनलोड्स, गाँव, शायद आपके गांव से रिलेटेड कुछ एनर्जी है, इन्फॉर्मेशन है जो आनी चाह रही है। आपके गांव में है कुछ ऐसा जो आपको आपके कनेक्शन के बारे में और रिवील करेगा डेप्थ में, ओके? मे बी सम ट्री, मे बी सम टेम्पल, आई एम फीलिंग, ओके? लाल धागे भी मुझे दिख रहे हैं, राइट? सो प्रॉबेबली सम मन्नत, आई डोंट नो, लॉट्स कमिंग इन, राइट? तो ईयर रिंगिंग अगर आपके पास हो रही है तो आपके एंजल्स आपसे कन्वे करना चाह रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। हायर फ्रीक्वेंसीज हैं जो आप तक रीच कर रही हैं। दिस मे बी इन द फॉर्म ऑफ वेरी वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज विच आर फिजिकल ईयर्स टेक टू बी एज ईयर रिंगिंग, बट इट इज़ एक्चुअली कम्युनिकेशन फ्रॉम द हायर रेल्म्स। तो ये कुछ लाइट पैकेट्स हैं जो डाउनलोड हो रहे हैं आपके लिए, जो टाइम रहते आपको उसका मतलब
पता पड़ेगा धीरे धीरे करके, जैसे जैसे आप अपना वर्क कर रहे हैं. Headache since 3 or 4 days, right? So this is like lots of crown chakra activations happening for you, truly, Shri. It's all because of Mercury retrograde energy of let go and move on, right? So Mercury की वजह से भी जो Mercury retrograde जब होता है ना, तो हमारा कम्युनिकेशन थोड़ा सा अफेक्ट हो जाता है, हमारा डिसीजन मेकिंग स्किल अफेक्ट हो जाता है, हमारा जो स्पॉन्टेनिटी है वो मार हो जाता है. इसीलिए कहते हैं जानबूझ के आप थोड़ा सा स्लो हो जाइए, जानबूझ के बड़े डिसीजंस ना लीजिए, जानबूझ के अपने एक्स से रीच आउट मत करिए, क्योंकि गड़े मुर्दे बाहर आएंगे उभर के और फिर आपने वही पास्ट मिस्टेक्स, पास्ट पैटर्न्स को रिपीट करना है. आपका कम्युनिकेशन बहुत ही नेगेटिव हो जाता है, राइट, लो वाइब्रेशन का हो जाता है. इसीलिए कहा जाता है कि थोड़ा सा माइंडफुल हो, और डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये सारे प्लैनेट्स जो हैं वो भी दे ऑल फंक्शन अंडर डिवाइन विल, राइट. तो वो भी एक बहुत ही हायर फोर्स के अंडर ही काम कर रही है. एनर्जीज हैं, प्लानिटरी एनर्जीज जो है वो हमें सपोर्ट ही कर रही हैं, चाहे बुरे से बुरा प्लैनेट हो, राइट. राहु केतु भी, मैं कभी किसी की पत्री उठाती हूँ तो मैं सबसे पहले राहु केतु देखती हूँ, भैया राहु केतु कहाँ प्लेस्ड है, क्योंकि वहीं इंसान का लाइफ पर्पस है. आपने जन्म ही इसीलिए लिया है यहाँ पे, राइट. मुझे तो बहुत डिटैच फील हो रहा है. आई एम लाइक बिजी इन माई वर्क एंड आई डोंट केयर वो क्या कर रहा है. ओके, बट दिस ऑफ एंड ऑन switch affects even more, which is even affecting my peace and triggers more. So what to do then, right? So Anukriti, that is why I mentioned you need to have your spiritual practices in place. अगर आप नेम चैंटिंग कर रहे हैं, डिवाइन का नेम चैंट करिए, इससे बड़ा कोई मतलब इससे बड़ा कोई रामबाण नहीं है, ठीक है. चाहे वो महादेव हो, चाहे वो शिव हो, चाहे वो कृष्णा हो, चाहे वो राधा रानी हो, चाहे वो सीता मैया हो या राम जी हो, चाहे वो हनुमान जी हो, कोई भी डिएटी जो है आपका जिससे आप ड्रॉन फील करते हैं, चाहे वो माँ काली हो, चाहे वो माँ दुर्गा हो, जिससे आप कनेक्टेड फील करती हैं, जिससे आपके मन को शांति मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है, अपलिफ्टमेंट मिलता है, वो नेम आप चैंट करें. आपको मंत्र का भी उच्चारण नहीं पता है, आपको मंत्र नहीं पता, आपको दीक्षा नहीं मिली है, कोई इशू नहीं है, आप डिवाइन नेम चैंट करें, ठीक है. राधे 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 राधे, या शिव 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 शिव, आप बोलते रहें बार बार. जब आप बोलते रहेंगे आपके मन में जो है, यू आर कल्टिवेटिंग अ सर्टन फोकस विद इन योर सेल्फ, यू आर चैनलिंग योर मेंटल एनर्जीज टू फिक्स द मेंटल एनर्जी ऑन अ सिंगल पॉइंट ऑफ फोकस, right? Doesn't matter who the deity is, right? All you're doing is that you're channeling your mental energies to focus in one place, and through that peace emerges. Through that you remember that peace is already placed within you, ठीक है. पीस कभी डिस्टर्ब नहीं होता, वो तो डिस्टर्बेंसेस आते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि यार पीस भंग हो गया. पीस तो हमेशा वही है. पीस इज लाइक द स्काई. जब भी आप सर उठा के ऊपर देखें तो स्काई तो है ही है, राइट. बट जब क्लाउड्स आ जाते हैं बहुत सारे, तब हमें लगता है कि यार ब्लू हमें स्काई नज़र नहीं आ रहा है, तो लगता है स्काई है ही नहीं, राइट. बट ऐसा नहीं है. पीस इज ऑलवेज देयर विद इन यू. इट्स सिंपली अ मैटर ऑफ यू टू ब्रिंग योर फोकस टू दैट, राइट. सो व्हेन यू टैप इनटू इट, यू कैन रिकनेक्ट विद योर पीस एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. हाय श्वेता, I feel nothing today. It's like all over. It's time for me to move on, maybe. Right? Move on की energy है. एक और लेडी ने आज बात करी है. I think आस्था जी it was. She asked, एक ही क्वेश्चन आ रहा है माइंड में कि should I stay or should I move on? So I told her, I'm never the person who is going to ask you to stay stagnant in one place, to stay stuck in one place. Go on, move on. Move on करके भी देख लो ना, एक बार करके देखो, right? तो बी ओपन टू दैट एक्सपीरियंस, बी ओपन टू दैट एक्सपेरिमेंट इज़ वेल. उससे भी आपको कुछ इनसाइट्स मिलेंगे, कुछ नई इन्फॉर्मेशन सामने आएगी अपने बारे में, कुछ नई अंडरस्टैंडिंग जो है वो अनलॉक होगी अपने बारे में, अपने पर्सन के बारे में, राइट. सो आई एम नेवर द पर्सन हु इज गोइंग टू आस्क यू टू स्टिक अराउंड एंड वेट फॉर योर डिवाइन काउंटरपार्ट टू कम इन. नहीं, वेटिंग इम्प्लाइज दैट फ्यूचर एग्जिस्ट्स, where in reality there is no past, there is no future, there is only the eternal now, there is only the infinite present moment. मेरे तो लव से ही दिल उड़ गया. वाह जी वाह, लव से ही दिल उड़ गया. अब बस खुद को कैसे एक्सपैंड कर लोगे विदाउट लव जी? कैसे बलून की जैसे एक्सपैंड कर लोगे आप?
कहाँ एक्सपैंड करना है? विदाउट लव हाउ कैन यू हैव एक्सपेंशन, हाउ कैन यू हैव इंक्लूजन? लव इंक्लूड्स, द ईगो एक्सक्लूड्स, ठीक है? तो अगर आप कट रहे हैं, आप किसी को अपने से दूर कर रहे हैं, आप अपने पर्सन को काट के अलग कर रहे हैं, तो एक्सक्लूजन हो गया ना। तो ये लव कैसे हुआ? लव ओनली नोज हाउ टू इंक्लूड. DM is divine masculine. I'm feeling detached, slightly irritated. Why have I tolerated so much? Time to just let him do his thing and I should do mine. Maybe he doesn't deserve my presence in this life. He's so careless. तो बहुत सी नेगेटिव चीज़ें ऊपर आ रही हैं श्वेता आपके पर्सन के लिए. If it helps you, please write them down. All of these negative things that are coming up now, it will help you. बिकॉज कहीं ना कहीं आपका पेन आज ऊपर आ रहा है. आपके अंदर जो हर्ट है, जो अभी तक शायद एक जो फोर्स्ड लव है उसके नीचे कहीं ना कहीं सिमर कर रहा था, राइट? और हर्ट वो अब ऊपर आ रहा है ताकि आपकी रियली हीलिंग हो. दिस इज द रियल हीलिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. सो व्हेनेवर पेन कम्स अप, इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू ओपन अप योर हार्ट, राइट? सो if you write these negative thoughts, negative feelings down, what helps is that you take a step back and then you start processing what is going on within you in a very neutral way. लव को चूज करो, लव डिवाइन है. लव इंसान से नहीं होती, लव भगवान से होता है. लव सब जगह है. कहाँ भाई इंसान भगवान से कौन मिला है? किसने हैंडशेक किया है बताओ मुझे? किसने हैंडशेक किया है भगवान से, राइट? गॉड इज एवरीवेयर, इन एवरीथिंग एंड इन एवरीवन, राइट? एंड इन दैट all we are here to give is love. It itself is love. DM asked me to give space. At the same time I'm seeing a lot of angel numbers, seeing his name, situation, reminding days, moments we spent together, right? क्योंकि आप भाग रहे हैं ना आप रनर एनर्जी में, इसलिए आपको वापस खींचा जा रहा है, आपको वापस दिखाया जा रहा है. पास्ट स्वीट मेमोरीज जो हैं, ब्यूटीफुल मेमोरीज जो हैं, वो आपके तरफ दोहराई जा रही हैं ताकि आप वापस से जर्नी पे आ जाएं, वापस से ट्रैक पे आ जाएं, वापस से अपना इनर हीलिंग का जिम्मा जो है वो उठाएं और आगे बढ़ें. हंसते हंसते, खुशी खुशी, रोते धोते नहीं भाई. बहुत रो धो लिए. अगर ज़िंदगी बन जाए तो भगवान की ब्लेसिंग्स मिलेगा, अगर टूट जाए तो भगवान संभाल लेंगे, राइट? गॉड इज़ ऑलवेज देयर, इजंट इट? कोई है नहीं है, महादेव तो हैं, ठीक है? कोई आपके सुख दुख में कोई साथी है या नहीं है, कोई फैमिली मेम्बर है या नहीं, कोई फ्रेंड है या नहीं, महादेव तो है ही, राइट? तो महादेव से आपका जो रिलेशनशिप है वो पहले एस्टैब्लिश कर लें, उसके बाद में सब आसान हो जाता है. इसीलिए भगवान से ज़ोरदार प्रेम करो. अगर किसी इंसान के मुंह में फंस रहे हो तो जोरदार प्रेम. मेरे ट्विन फ्लेम के आने के बाद पता नहीं संन्यास वाला जीवन जीने की इच्छा जागने लगी है. ऑफ कोर्स, राइट? बिकॉज स्पिरिचुअल एक्टिवेशन हो जाता है ना ट्विन फ्लेम के आने के बाद में. योर ट्विन फ्लेम विल शो यू all of the places where you have been attaching yourself materialistically, ठीक है? Which is including the twin itself, quite ironically, ठीक है? तो वो यहाँ पे आपको डिवाइन लव, डिवाइन ट्रूथ दिखाने आए हैं, नॉट दिस लवी डवी रोमांटिक कनेक्शन दैट वी हैव इन आवर माइंड्स के पेड़ों के इर्द गिर्द गोल गोल घूमेंगे और हम जी शादी करेंगे, घर घर खेलेंगे, रोटियाँ पकाएंगे, राइट? वी आर नॉट हियर टू डू दैट, राइट? गाँव में टेम्पल है, काली माँ का हमारी कुल देवी है, राइट? तो कुछ ना कुछ कनेक्शन है. रुद्रान साधना, कुछ मुझे लाल धागे से समझ आ रहे थे, कुछ एक बहुत ही पुराना, बहुत ही बड़ा वृक्ष है, वट वृक्ष जैसा लग रहा है और बहुत ही पुराना, बहुत ही रिस्पेक्टेड पेड़ है आपके वहाँ गाँव में, बहुत ही सीक्रेट ट्री है और एक छोटा सा मंदिर भी है. तो आप वहाँ जाएं या आप जब भी अपने मेडिटेशन में बैठ रहे हैं तो वहाँ की एनर्जी से कनेक्ट करें. कुछ ना कुछ है जो आपकी तरफ आना चाह रहा है वहाँ से, राइट? वहाँ की एनर्जीज आपको बुला रही हैं, आपसे कनेक्ट करना चाह रही हैं, आपको कुछ देना चाह रही हैं. बेसिकली दिस इज लाइक स्पिरिचुअल गाइडेंस कमिंग थ्रू. His past trauma is coming between us, which is leading to his anger issue and insecurities are coming in, right?
वो टेम्पल मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। यहाँ पर जो काली माँ है वो बहुत मानता वाली हैं। मेरे बचपन का मोस्ट ऑफ द टाइम वहीं पे गुजरा है। ब्यूटीफुल, लवली। केतु लिब्रा अगर 12th में हो तो कौन सा मोह माया छोड़ूं मैं इन D1 सब कुछ टोटल। Ketu in Libra is amazing, amazing. You'll have to see where your Venus is placed and what is the strength of Venus and which house it is sitting. But Ketu in 12th itself, अगर आपका D1 में है placed, तो it means that you are here to complete your lesson, your soul lesson, right? आप यहाँ पे मोक्ष प्राप्त करने आए हैं in this lifetime itself. And we are all set up for that, trust me. Whether you have Ketu in 12th or not, we all have the perfect situation and circumstance to realize our highest truth, to realize our connection with divine source love, and to realize our own highest potential, right, in spiritual terms. तो हम आए ही इसीलिए हैं। और ये तो हमें कहा जाता है कि भैया अब इस जन्म में तो होगा नहीं तुम्हारा, तो हम चादर ओढ़ के सो जाते हैं। बट दिस ह्यूमन फॉर्म इज सो प्रेशियस। वी डोंट नो इफ वी माइट एफ थिंग्स अप एंड वी एंड अप एज अ रैबिट वंस अगेन, राइट। तो ये मनुष्य की जो योनि है जो आपको प्राप्त हुई है, बहुत ही मेहनत मुशक्क़त और बहुत सालों के बाद प्राप्त हुई है, काफ़ी जन्मों के बाद आपको प्राप्त होती है। तो ये बहुत ही अति दुर्लभ है। और हमारे पास वाणी है, हमारे पास इतनी सारी नॉलेज है जिसका हम उपयोग करके हम सीधे सच्चे मार्ग पे चल सकते हैं, हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर वॉकिंग ऑन दिस पाथ कॉन्शियसली अवेयर, बिकॉज otherwise it's like we have very little time over here, very little time. We are here just for the blip of a second. अभी आपने जन्म लिया और अभी आपके मरने की स्थिति आ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा और कहाँ टाइम निकल गया, राइट। तो डिवाइन नेम चैंट करें, उससे आपके जो पिछले कार्मिक बैगेजेस हैं वो भी रिलीज होते हैं, राइट। दी मैं डिटैच्ड हूँ पर न्यूट्रल भी अंदर, पता है सच क्या है, खुद पर फोकस हूँ, आउटर में क्या कर रहे हैं डीएम उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एब्सोल्युटली उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जो मर्जी कर रहे हो, राइट। वो आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और पड़ना नहीं चाहिए। अगर आपको फ़र्क पड़ रहा है तो भी वो आप समझिए कि वो आपकी इंटरनल इमोशनल क्लेंजिंग के लिए हो रहा है, राइट। जो भी हर्ट आपको फील होता है वो आपकी इमोशनल बॉडी का पेन है जो छूट के जा रहा है, राइट। वो आपको फ्री कर रहा है, कहीं ना कहीं आपके डिवाइन काउंटरपार्ट आपको फ्री करने आए हैं, ठीक है। तो वो पेन देके जाएंगे, ट्रिगर देके जाएंगे, बट साथ साथ में आपको दिखाएंगे कि कहाँ आप फ्री नहीं हैं, राइट। बट वो डीएम एसेंशियली फिजिकल में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इट डजंट मैटर इंट्रिंसिकली, एज लॉन्ग एज यू आर कनेक्टेड टू सोर्स। कुछ भी कर लो, मूव ऑन करो, बात नहीं करो या ना करो, कहीं भी भाग जाओ, कुछ भी करो, ये नहीं ख़त्म होने वाला है। दैट आई हैव डन अ लॉट, परफेक्ट, ब्यूटीफुल। तो ये इस नतीजे पे आप कैसे पहुँचे, थ्रू योर ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, फॉर विच आई एम ऑल फॉर। मतलब मेरी भी बातों पे मत जाओ पूरी तरीके से, उसको टेस्ट करो, एक एक वर्ड को टेस्ट करो, एक एक वर्ड को परखो, तोलो, अपने एक्सपीरियंस में लाओ। तो आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपका एक्सपीरियंस आपका ट्रूथ है। मैं जो बोल रही हूँ वो मेरा ट्रूथ है। तो आप मेरा सच कैसे मान रहे हो और क्यों मान रहे हो, आप किसी और का सच कैसे मान रहे हो और क्यों मान रहे हो, नहीं मानना चाहिए ना। आपका ट्रूथ जो है वही आपका सत्य है, आपका एक्सपीरियंस जो है वही आपका सत्य है, राइट। तो जब तक जैसे आपने ये रियलाइज़ किया, कुछ भी कर लो, कुछ भी बातें कर लो, मैं छोड़ के चली जाऊंगी, मैं मूव ऑन कर लूँगी, मैं बात करूँगी नहीं, मैं बात करना छोड़ दूँगी, दिस एंड दैट, ये ख़त्म होने वाला नहीं है। ये इस नतीजे पे आप कैसे आए, क्योंकि आपने खुद ये एक्सपीरियंस किया, राइट, अपनी सिचुएशन से। Is there a general move on energy? Probably, might be so, I don't know, might be so. D, how can I increase my self-belief? By telling yourself that you believe in yourself. Dear, after separation we connected, but this time it seems so different, like I'm not 100% over attached to him, and same for him, I feel different, which is good. Different is good कि आप अपने प्लेस ऑफ पेन से अटैच नहीं है उनके साथ में, विच इज़ रियली गुड। आई फील लाइक देयर इज सम प्रोग्रेस हियर फॉर यू, श्वेता मिश्री।
वीनस तो लक हाउस में बैठ गया है, 9000 कैरेक्टर, परफेक्ट है। आपको टेंशन ही क्या है? क्या टेंशन आपको लाइफ में? टेंशन नहीं लेने का। बट द थिंग इज, इतना ज़्यादा गुस्सा है, लाइक कुछ भी कर लो कंट्रोल नहीं कर पाती, क्योंकि कंट्रोल करना ही नहीं है। केतु इन 12th मतलब क्या? सरेंडरिंग टू डिवाइन, सरेंडरिंग टू गॉड इटर्नल। आपने अपनी जीवन की बागडोर ऊपर वाले के हाथ में दे देनी है, और फिर आप देखो कि आपके लाइफ में कैसा ग्रोथ होता है, राइट? आज तक 6 टाइम्स गुस्सा हुए हूँ बचपन से, बट जब जब गुस्सा हुआ तब तक तबाही मची है, राइट? महादेव 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 महादेव। बड़ा मज़ा आता है, बड़ा मज़ा आता है वंस वी स्टार्ट कनेक्टिंग विद डिवाइन नेम। Literal secrets to the universe start getting unlocked to you, and I'm like, do not underestimate the power of divine name. You know, once you start doing it, it may be anything. It can be any form of divine. It can be under any religion, right? चाहे वो वाहेगुरु, चाहे वो अली हो, चाहे वो महादेव हो, चाहे वो राधे हो, राइट? कोई भी डिवाइन नेम है, आप उसको उठा के उसको केवल चैंट करो। जब भी आप नेगेटिव हो रहे हो, बहुत ज़्यादा हैवीनेस हो रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, चैंट करना शुरू कर दो। वो विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स जो हैं, वंस यू स्टार्ट कनेक्टिंग विद द एनर्जीज ऑफ डिवाइन, इट इज़ गोइंग टू फेड अवे, इट्स गोइंग टू ट्रिकल आउट, राइट? दी गुस्सा को कम करने का उपाय क्या है? मार्स एंड सन मर्क्यूरी, ओके। आप वाइट कपड़े ज़्यादा पहना करो रुद्रांश। वेयर मोर वाइट, कीप मोर वाइट एक्सेसरीज अराउंड यू। अगर आपके पास फ़ोन है, फ़ोन का कवर वाइट रखो, वाइट पर्स रखो, वाइट नोटबुक रखो, वाइट पेन रखो। कीप मोर वाइट ऑब्जेक्ट्स नियर यू, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू बैलेंस आउट एनी इम्प्लीकेशंस दैट यू माइट हैव इन योर चार्ट। और ऑल्सो आपको जो गुस्सा है, टेम्परामेंट है, उसको थोड़ा शांत करने में मदद करेगा। इफ़ यू वॉन्ट टू वर्क विथ क्रिस्टल्स फॉर रिड्यूसिंग एंगर, beautiful crystals for reducing anger are howlite, selenite, then there is white jade, and there is one more, मैं भूल रही हूँ, 2 more actually, angelite and rose quartz। तो ये कॉम्बिनेशन जो है, ये कॉम्बिनेशन का ब्रेसलेट अगर आप पहनेंगे तो आपके गुस्से में विद इन द मोमेंट दैट यू स्टार्ट वेयरिंग द ब्रेसलेट, इमीडिएटली फ़र्क आपको दिखाई देगा, राइट? तो क्रिस्टल एनर्जी की मदद आप ले सकते हैं। लोग मुझे रुला नहीं पाते तो कितनी गंदी बात करते हैं मुझे लेकर, मैं क्या करूँ इसमें? डजेंट मैटर व्हाट पीपल से, ओके? इट्स रिफ्लेक्टिव ऑफ हु दे आर, नॉट रिफ्लेक्टिव ऑफ हु यू आर। How to heal trust issues? Hi Shiny, if you're having trust issues, probably your masculine is also wanting resolution with the same right now. So I feel like for healing trust issues, लर्न हाउ टू ट्रस्ट योर ओन इंट्यूटिव इंस्टिंक्ट। आपका गट इंस्टिंक्ट जो है उसको क्लोजली फॉलो करें। पास्ट में ऐसा हो सकता है कि आपने जब भी इंसानों पे ट्रस्ट किया है, आपका विश्वास तोड़ा गया है, राइट? एंड स्पिरिचुअली ये जानबूझ के हुआ ताकि आप अपनी इंट्यूशन से कट ऑफ हो जाएं, राइट? बट अभी आपने अपनी इंट्यूशन को और क्लोजली फॉलो करना है। जैसे जैसे आप अपने नजेस को फॉलो करेंगे, वैसे वैसे आपका ट्रस्ट इशू जो है डिसॉल्व हो जाएगा। खुद पे विश्वास रखना है, खुद पे ट्रस्ट रखना है, महादेव पे ट्रस्ट रखना है, ठीक है? जो चीज़ समझ नहीं आ रही, मुझे नहीं पता महादेव, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज़ आप संभाल लो, ठीक है? इतना बोल के आप छोड़ दो, राइट? तो इट्स अ प्रोसेस। आई एम नॉट सेइंग दैट इट विल हैपन ओवरनाइट फॉर यू, बट इट्स अ प्रोसेस, ठीक है? कहीं ना कहीं आपको लग रहा है नहीं वो वापस से वो एनर्जी आ रही है कि चेकिंग वाली, या वो वेरी होने वाली, या आपके माइंड में अलार्म्स बज रहे हैं। वो अलार्म्स के पीछे भी एक रीज़न होता है, राइट? सो आई फील लाइक हियर यू नीड टू लर्न हाउ टू डिसर्न इंट्यूशन फ्रॉम फियर, राइट? दैट विल हेल्प यू अ लॉट in healing your trust issue. कृष्णा जी की आंखों में देखना ट्रस्ट हो जाएगा, ट्रस्ट इश्यूज एकदम खत्म। लवली, वाओ, आई ऑल्सो हैव कृष्णा इन माई माइंड डेली, थैंक यू। गुस्सा को महादेव को दे दो, सब उनको दे दो। फॉर श्योर इट मेक्स मी डाउट माई सेल्फ और हिम दैट डू वी और डोंट वी हैव सो मच लव नाउ और इस डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी परफेक्ट। दी गुस्सा को कम करने के लिए शिव नेम चैट स्टार्ट करना किया था, बट
बहुत ज़्यादा भोला बनने लगी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड बनने लगी। कृष्णा नेम चैंट करना चालू किया तो इतना ज़्यादा नटखट बनने लग गई, तंग करने लग गई थी बहन को, बहुत सबको चिढ़ाती थी। राधा माँ का नाम चैंट करने लगी तो प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम है तुमको राधे? क्या चाहती क्या हो? क्या बताएं हम तुमको? परेशान कर रहे हो। नेम चैंट भी नहीं करना, मत करो नेम चैंट फिर। अब जिसका नेम आप चैंट कर रहे हो उसकी क्वालिटीज तो उतरेंगी ना आपके अंदर, कि नहीं उतरेंगी? दी मुझे भी कुछ पूछना है। किसी की डार्क ब्रूजेस ब्लैक मैजिक किया हो तो यस, डिवाइन का नेम लेना ही है, पर उसको प्रोटेक्शन के लिए अभी यू ऑलवेज आर प्रोटेक्टेड। योर गुड कर्मास आर योर प्रोटेक्शन, दे आर योर शील्ड, राइट। आपकी दूसरी ढाल है आपके स्पिरिट गाइड्स, राइट। आपकी पूरी की पूरी स्पिरिट टीम जो है वो आपका दूसरा ढाल है। आपकी तीसरी ढाल है आपके एंसेस्टर्स, ठीक है, जिनकी लिनियज को आप सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपके थ्रू जी रहे हैं, राइट। आपकी चौथी ढाल है आपके अच्छे कर्म, ठीक है। तो इतने सारे प्रोटेक्शन आपके पास ऑलरेडी है, और सबसे मेन ढाल जो है वो आपकी वो तो है ही डिवाइन की, राइट। तो आपको डरने की क्या ज़रूरत है? मुझे ये बताओ, ये काला, पीला, सफ़ेद, पर्पल, ब्लू, ये मैजिक क्या कर लेगा आपका? बताओ। ये सब फेल है डिवाइन के आगे। We both are 7 Mulang and 6 destiny. Having both of us, does that good create communication gap? I don't know Shweta. Mulang, destiny and all of that, I don't get into that a lot. एक स्टेबल वाला नेम चैन करो जिसमें मुझे नुकसान नहीं हो। सोहम करिए आप, सोहम करिए रुद्रांश। योगिनी के बारे में जानते हो? योगिनी के बारे में क्या जानना है आपने? आप कैसे फील कर रहे हो आज? हाउ आर योर एनर्जीज? लाइक आई मेंशन्ड इन द बिगिनिंग ऑफ दिस लाइव, द डे स्टार्टेड आउट क्वाइट स्लो, द एनर्जीज वर वेरी वेरी लो, दे वर ड्रैगी, आई जस्ट वांटेड टू रेस्ट। कोई काम करने का मन नहीं, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा था, ध्यान नहीं लग पा रहा था, राइट। बट फिर एज द डे वेंट ऑन, द एनर्जी रिटर्न्ड वंस अगेन। Yeah, so it seems to be fine today, right? Lots of ups and downs happening. याद मैं भी बड़े बड़े वर्ड्स बोल रही, क्या है? योगिनी का पर्पस क्या है? ये आप गूगल करिए इन्फॉर्मेशन। अगर आप चाह रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच ही जाएगी किसी न किसी तरीके से। ऑल्सो आई एम फीलिंग लाइक रुद्रांश, साधना, this might be a trigger warning, okay, but you might be drawn to gaining power, okay, but the question that you must ask to yourself is that why do I need this power? Why do I want powers? ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं मुझे कुछ एक सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी यहाँ पे सेंस हो रही है, ठीक है, स्प्लिट सेंस हो रहा है। तो या दिस इज समथिंग दैट maybe will help you. Ma'am, I'm experiencing some rotten smell out of a sudden, sometime home between 3 or 4:30 else. Please burn camphor. Meenakshi, please burn some camphor, kapoor in the home. कपूर को एक छोटी सी डिश में, प्लीज़ मेक श्योर दैट द डिश इज़ ऑन अनदर वेसल, क्योंकि कपूर जब आप बर्न करेंगे तो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, तो आपका हाथ ना जले।
राइट. सो प्लीज़ इन अ सेफ एनवायरनमेंट, या आप जिससे हम आरती करते हैं उसी दिए में आप कपूर की कुछ टिकिया रख कर उसको बर्न करके अपने पूरे घर में दिखाएं. राइट. एंड इसको फायर क्लेंस बोलते हैं. एंड प्लस यू कैन बर्न कपूर, जो बर्नर होता है ना जिससे फ्यूम्स और इंसेंस का जो क्या बोलते हैं उसको, डिफ्यूज़र, कपूर डिफ्यूज़र में भी रखें. एंड आपके बाथरूम में जस्ट हैव अ हैंडफुल ऑफ क्रिस्टल सॉल्ट, just throw it in your pot and just flush it, right? That's going to make sure of whatever is there, it's going to make its way out, right? Started my spiritual journey, I don't know what's going on, lot of thoughts and confusions. It's okay, don't worry, we are all here for you, Escotian. It's all good. अभी जस्ट छत पे जाके मून से बात करके आई, बहुत अच्छा लगा. देन आई सॉ योर लाइव. अभी तक हो रहा है वो सेंसेशन उधर, जैसे चोर नहीं, kind of pleasant लेकिन very prominent also. It might be shiny. I am feeling like if it's not giving you some sort of pain or discomfort, I do feel like this might be fresh new positive energies that are reaching you at this point of time. तो अभी आप इस टाइम अगर इन energies को लेकर आप meditate करते हैं तो आपको बहुत benefit मिलेगा. And this is some positive new energy coming in. Somehow I feel that. I may be wrong, but yeah, you can let me know. That's what I'm feeling, that's what I'm picking up on. It's a fresh energy. It's sort of like a rejuvenating energy coming into you. इन्फिनिट सोल ब्यूटी, यार तुम्हारे अलावा कोई यहाँ है ही नहीं. लुक एट यू गाइज, यू जस्ट लाइक टॉकिंग लाइक मी ओनली. लवली, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है. क्या बोला जाता है पता नहीं. मे बी ये सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, अधूरी इन्फॉर्मेशन है. आप थोड़ा और इस पर ध्यान करेंगे तो और इन्फॉर्मेशन आ जाएगी. कनेक्टिंग लिंक्स मिल जाएंगे आपको आने वाले हफ्ते में. आई फील लाइक यू माइट हैव मोर क्लैरिटी ऑन दिस, रुद्रांश. आई एम ऑल्सो फीलिंग न्यू. lovely, beautiful. So take care. I had so much of fun joining in this live. I hope it helped you. I'll catch you again very, very soon. Take care. Stay blessed.